Hello, welcome to my YouTube channel. You are watching a physics on topic on physical quantities and measurement. So yesterday I have already discussed on a physical quantity. Now today I am discussing on a measuring volume. If a question arises, what do you mean by volume? Volume means what? The amount of space occupied by a three-dimensional object is called what? Volume. As for example, suppose this is a tennis ball and this is a what? Cricket ball, and this is a football. This means that tennis ball occupies less space and has less volume as compared to the cricket ball, whereas football occupies more space and has a greater volume. Okay, so therefore it is larger in size. Clear? Moreover, if a question arises, how can you find out the volume of a three-dimensional object? We can find out the volume of a regular three-dimensional object if we know its dimension, say length, breadth and height. So how can we find out? Let's see. Volume of object. Okay, so we can find out by multiplying by product of the dimension of three-dimensional object, say length into breadth into height. We can get the value of what? The volume of object. Now if a question arises, what is the SI unit of volume? Suppose you know very well it's the SI unit of length is what? Meter. This one is also a meter. Height is 2 meter. So the SI unit of volume is what? Meter cube. So the smaller unit of meter cube is what? Centimeter cube. If I question what is the relation between the meter cube and centimeter cube, that you shall keep in mind that you know very well in 1 meter how many centimeters are there? There are 100 centimeters in 1 meter. No. So suppose if you want to convert the meter into centimeter cube, you already know that in 1 meter there are 100 centimeters. Then you can multiply 100 how many times? 3 times, because there are power cube. Okay, so this means that you will get 100 into 100 into 100. So your answer is what? 10 power 6 centimeter cube. So this means that we can say in 1 meter cube there are 10 power 6 centimeter cube. Okay, so now discussing on the measuring volume of liquid. So how can you measure the volume of liquid? First of all, I want to say that the volume of liquid which a container can hold, the volume of a liquid which a container can hold is known as what? Capacity of a container. So it is also measured in the unit, namely milliliter and liter. So we can say the SI unit of volume of liquid is called what? Is liter, milliliter. Clear? So what are the two major instruments for measuring the volume of liquid? Number one is measuring beaker, number two is measuring cylinder. So now I am discussing on the measuring beaker. What? Measuring beaker. Okay. Measuring beaker. So what is measuring beaker? So measuring beaker is just like a can. Just like a can, you have seen a milkman, or you have to see at a shop who filled a kerosene in them. Okay, so these beakers or can are available in different capacities, say different what volume, say 100 milliliter, 200 milliliter, 250 milliliter, 500 milliliter, or 1 liter, or maybe 2 liter, and so on. Okay, so now I am discussing on the measuring cylinder. So what is measuring cylinder? Measuring cylinder. So measuring cylinder means it is made up of what? Glass or plastic. Okay. It is made up of what? Glass or plastic. So to obtain the accuracy of a measurement of the volume of liquid, so measuring cylinder are used. So they are generally of length 10 to 15 centimeter in length, and the area of cross section is about 10 centimeter square. Okay, इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है, और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस मतलब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होते हैं ये होते हैं आपका 10 सेंटीमीटर तक होते हैं, और इसकी जो हाइट होती है वो 10 to 15 सेंटीमीटर इन हाइट होते हैं. ओके, तो ये कांच का नहीं तो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. उसके बाद अभी हम बात करेंगे ये जो अवेलेबल होते हैं, दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस सच एज 10 ml, 50 ml, और मे बी 100 ml और 200 ml. ओके,
सो ये जो दिस मेजरिंग सिलेंडर आर अवेलेबल इन लेबॉर्ट्री। आपने लेबॉर्ट्री में देखे होंगे कि ये मेजरिंग सिलेंडर वहाँ पर होते हैं। टू किस लिए होते हैं ये लेबॉर्ट्री में? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू डिटरमाइन द एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड। किसके लिए पता चलता है? इरेगुलर सॉलिड के बारे में वॉल्यूम भी निकालने का काम आता है। ओके, सो मोर ओवर अब इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा, अगर आप मेजरिंग सिलेंडर के बीच में अगर आप यू हैव टू पोर वाटर इन इट, अगर आप इसके बीच में पानी डालते हो तो पानी अगर डालोगे तो पानी का जो शेप है वो कैसे हो जाएगा? कॉनकेव। क्या हो जाएगा? कॉनकेव। अगर आप मरकरी डालते हो तो मरकरी अगर डालोगे मेजरिंग सिलेंडर के बीच में तो आप देखोगे इसका आपको जो दिखाई देगा वो आपका कॉन्वेक्स में होगा। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मेनिसस और ये हो जाएगा कॉनकेव मेनिसस। तो हाउ कैन यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड मरकरी? तो यू मस्ट कीप इन माइंड इन दिस केस योर आई शुड बी इन द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपकी आंख जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन एट द बॉटम ऑफ लिक्विड, एट द बॉटम। मतलब आपकी जो आंख है वो एट द बॉटम, ये जो नीचे की तरफ है यहाँ पर आपकी क्या होनी चाहिए? आईज होनी चाहिए। ओके, जबकि मरकरी में आपकी कहाँ होना चाहिए? योर आई शुड मस्ट बी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द टॉप ऑफ ए कॉन्वेक्स, टॉप ऑफ ए सरफेस। ये जो टॉप है इस जगह में आपका क्या होना चाहिए? आपकी आई होनी चाहिए। इस तरह से आप इसका मरकरी का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। क्लियर? अभी हम बात करेंगे हाउ कैन यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ रेगुलर सॉलिड। तो रेगुलर सॉलिड आपको ऑलरेडी पता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा इफ यू वांट हाउ कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाउ कैन यू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर आपको डायमेंशन पता होगा तभी तो आप निकाल पाओगे। आई कैन से सपोज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन अ बोर्ड दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर आपको क्यूब मिलेगा तो क्यूब में यू नो वेरी वेल दैट ऑल द डायमेंशंस आर व्हाट? इक्वल इन साइज। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए इंटू ए, तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब बन जाएगी। ओके, तो ठीक वैसे ही अगर आपको मैं बॉल दे दूं, क्रिकेट बॉल दे दूं या फुटबॉल दे दूं तो आप उसको कैसे निकालोगे? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब निकालोगे। अगर मैं आपको सिलेंडर दे दूं तो आप इसको कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, एच मतलब ये हाइट। रेडियस का कैसे पता चलेगा? ये जो सेंटर से ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। इन दिस वे यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ व्हाट? सिलेंडर। ओके, so now the question arise again, next topic is the measuring volume of what? Irregular solid। आप irregular solid को वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक ए मेजरिंग सिलेंडर। आपको क्या लेना होगा? मेजरिंग सिलेंडर लेना होगा। तो मेजरिंग सिलेंडर में आपने क्या किया? आपने उसके अंदर में पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। देखो ध्यान से सुन लो, मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ व्हाट? इरेगुलर सॉलिड। इरेगुलर सॉलिड, आप एक मेजरिंग सिलेंडर ले लो, इसके बीच में आपने पानी भर दिए। तो मान के चलो कि पानी का आप कहाँ पर है? 10 ml तक है, या फिर आप इसको ले लो और 10 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी मान लो आप। तो आपने ये लेने के बाद अब आप करोगे क्या? तो आपने एक ईंट ले ली है। आपको पता कि ईंट ले लो या पत्थर ले लो, देखो इसका जो शेप है कोई फिक्स डायमेंशन है इसका? नो रेगुलर शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इसका। यू कैन नॉट इजीली मेजर विद द हेल्प ऑफ स्केल और इंची टेप और मे बी टेप। ओके, आप इसको किसी तरह का इसको डायमेंशन आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? आप एक रस्सी ले लो और धागा ले लो, यू हैव टू टाइड इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग से आप इसको इसके बीच में क्या करोगे? डाल दो। जैसे ही आप इसको इसके बीच में डालोगे ना तो देखोगे द लेवल ऑफ वाटर राइजेस, द लेवल ऑफ वाटर राइजेस। अब आपको देखना है कि पहले इसका वॉल्यूम क्या था? 10 सेंटीमीटर क्यूब। जब अब पत्थर को बांधने के जब इसके अंदर में डालने के बाद इसका मेजरिंग दिखाएगा कितना? 13 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो 13 सेंटीमीटर क्यूब आया है ये मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ स्टोन प्लस वाटर। स्टोन प्लस वाटर, पत्थर और पानी का मिला के क्या आ गया? ये आ गया। ओके, तो पहले मेरा पानी का कितना था? जिसमें सिर्फ पानी था वो था 10 सेंटीमीटर थी। तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट? स्टोन। हम स्टोन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सो वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टोन बाय डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो
तो 13 माइनस, देखो इसमें स्टोन है, वाटर नहीं है, मतलब मैं सिर्फ पत्थर का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। तो आप इन दोनों के साथ क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस वे वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर सॉलिड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द यूट्यूब चैनल। आई होप you will clearly understand. If you don't understand, so please you comment me in a YouTube channel, and also you may subscribe my channel. Thank you for watching.